کبھی کسی نے سب کے سامنے تمہیں شرمندہ کیا ہو اور تم صرف اس لیے خاموش رہے ہو کہ بات مزید نہ بڑھے؟ ایسے لوگ اکثر تمہاری خاموشی کو تمہاری کمزوری سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہر بار خاموش رہنا ضروری نہیں، اور ہر بار غصے میں جواب دینا بھی سمجھداری نہیں۔ آج کے یہ 5 اصول تمہیں سکھائیں گے کہ ایسے لوگوں کو اپنی عزت مجروح کیے بغیر ایسا جواب کیسے دینا ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں سب کے سامنے نیچا دکھانے سے پہلے سوچیں۔ جو تمہیں سب کے سامنے شرمندہ کرے، اسے غصے کی بجائے پرسکون لہجے میں جواب دینا سیکھو۔ کسی کے طنز پر فوراً جذباتی رد عمل مت دو، کیونکہ تمہارا سکون ہی تمہاری طاقت ہے۔ جو شخص دوسروں کے سامنے تمہیں نیچا دکھائے، اسے یہ احساس مت ہونے دو کہ اس کی بات نے تمہیں توڑ دیا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے ہر بات برداشت کرنا ضروری نہیں، کبھی واضح جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی تمہاری کمزوری کو محفل میں مذاق بنائے تو مسکرا کر موضوع بدلنے کی بجائے اپنی حد واضح کرو۔ جو تمہیں شرمندہ کر کے خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی شخصیت کا معیار مت بننے دو۔ سب کے سامنے جواب دینے سے پہلے سوچو کہ تمہیں عزت چاہیے یا صرف بحث جیتنی ہے۔ کسی کے طنز کا جواب اسی لہجے میں دینا تمہیں اس سے مختلف نہیں رکھتا۔ اپنا وقار قائم رکھو۔ جو شخص بار بار تمہیں لوگوں کے سامنے نیچا دکھاتا ہے، اس کے ساتھ اپنی قربت پر دوبارہ غور کرو۔ اگر کوئی تمہاری بات کا مذاق اڑائے تو اپنی وضاحتوں میں الجھنے کی بجائے مختصر اور پر اعتماد جواب دو۔ دوسروں کی ہنسی سے اپنی قیمت مت ناپو، ہر مذاق سچ نہیں ہوتا۔ جو شخص تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے تمہاری پرانی غلطیاں نکالتا ہے، اسے اپنے ماضی کا مالک مت بننے دو۔ اپنی عزت کے لیے آواز بلند کرنا ضروری نہیں، بعض اوقات چند پر اعتماد الفاظ کافی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تمہیں سب کے سامنے قصوروار ثابت کرے تو فوراً دفاع کرنے کی بجائے پہلے حقیقت واضح کرو۔ جو لوگ محفل میں تمہاری عزت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اپنی کمزوریوں کی مزید معلومات مت دو۔ کسی کی بدتمیزی کا جواب اپنی بدتمیزی سے دینا تمہاری عزت نہیں بڑھاتا۔ اپنا معیار بلند رکھو۔ جو شخص دوسروں کو ہنسانے کے لیے تمہیں نشانہ بنائے، اسے اپنی خاموش برداشت کی عادت مت بننے دو۔ ہر محفل میں خود کو ثابت کرنا ضروری نہیں، کبھی صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ بات مناسب نہیں۔ جو تمہیں بار بار سب کے سامنے شرمندہ کرے، اس کے ساتھ اکیلے میں اپنی حد صاف الفاظ میں بیان کرو۔ کسی کے طنزیہ جملے کو دل میں اتارنے سے پہلے دیکھو کہ وہ تمہاری حقیقت بتا رہا ہے یا اپنی تربیت۔ جو شخص تمہاری عزت کا خیال نہیں رکھتا، اسے اپنی ذاتی زندگی میں پہلے جیسی جگہ دینا ضروری نہیں۔ محفل میں کسی کی غلط بات کا جواب دینے سے پہلے اپنے لہجے کو قابو میں رکھو تاکہ بات تمہارے خلاف نہ جائے۔ اگر کوئی تمہیں جان بوجھ کر شرمندہ کرے، اس کی توجہ حاصل کرنے کی بجائے اپنی عزت کو ترجیح دو۔ تمہاری خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا درست ہے۔ کبھی خاموشی صرف غیر ضروری بحث سے
बचने का फैसला होती है। जो शख्स तुम्हारी इज्जत सिर्फ अकेले में करता है मगर महफिल में मजाक बनाता है, उसके रवैये को संजीदगी से देखो। सबके सामने अपनी हद कायम करने के लिए लंबी तकरीर नहीं, एक वाज़े जुमला भी काफी होता है। किसी के अल्फाज तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक तुम उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा ना बना लो। इज्जत का मतलब ये नहीं कि कोई कभी तुम्हें बुरा ना कहे, बल्कि ये है कि तुम किसी की बेइज्जती को अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दो। याद रखो, बेहतरीन जवाब वो है जो तुम्हारी इज्जत भी बचाए और सामने वाले को दोबारा हद पार करने से पहले सोचने पर मजबूर भी करे। जो शख्स तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे अपनी कमजोरी दिखाने की बजाय अपने एतमाद से जवाब दो। किसी की महफिल में तुम्हारी तज़हीक हो तो हर हंसी का हिस्सा बनना जरूरी नहीं, अपनी खामोशी भी बावकार रख सकते हो। जो तुम्हें जानबूझकर शर्मिंदा करे, उसे अपनी तवज्जो का मरकज बनाकर उसकी कोशिश कामयाब मत करो। अगर कोई तुम्हारी बात का मजाक बनाए तो घबरा कर वजाहतें देने की बजाय मुख्तसर और वाज़ेह जवाब दो। दूसरों के सामने तुम्हें गलत साबित करने वाले हर शख्स को जवाब देना जरूरी नहीं, पहले देखो वो तुम्हारी इज्जत के काबिल भी है या नहीं। जो शख्स तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं रखता, उसे अपनी जिंदगी के राज बताते रहना दानिशमंदी नहीं। किसी के तन से परेशान होकर अपना मिजाज मत बदलो, तुम्हारी शख्सियत उसके एक जुमले से बड़ी है। अगर कोई तुम्हें महफिल में कमतर दिखाए तो अपनी आवाज नहीं बल्कि अपने एतमाद को बुलंद करो। जो शख्स तुम्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा करता है, उससे तन्हाई में बात करके अपनी हद वाज़ेह करना बेहतर है। हर तौहीन का जवाब फौरी देना जरूरी नहीं, कभी वक्त पर दिया गया पुरसकून जवाब ज्यादा असर रखता है। जो तुम्हारी कमजोरी को मजाक बनाए, उसे अपनी जिंदगी में दोबारा वही मौका मत दो। किसी के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने की बजाय हकीकत को सुकून से कबूल करना सीखो। जो शख्स तुम्हें नीचा दिखाकर हंसी हासिल करता है, उसे अपनी इज्जत की कीमत पर खुश करने की जरूरत नहीं। अगर कोई बार बार तुम्हारी तज़हीक करे तो सिर्फ जवाब देने की बजाय उस ताल्लुक की नौयत पर गौर करो। महफिल में किसी की सख्त बात सुनकर फौरन गुस्सा मत करो, पहले तय करो कि क्या जवाब देना वाकई जरूरी है। जो तुम्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा करे, उसे ये हक मत दो कि वो तुम्हारी खुद एतमादी तय करे। अपनी इज्जत के लिए हर बहस में कूदना जरूरी नहीं, कुछ बातें छोड़ देना भी समझदारी है। जो शख्स तुम्हारी इज्जत का मजाक बनाए, उसके साथ अपनी कुर्बत कम करना बदला नहीं, अपनी हिफाजत है। किसी के तंजिया अल्फाज को अपनी हकीकत समझने से पहले अपने किरदार और अमल को देखो। जो तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करने का आदी हो, उसे बार बार माफ करने से पहले अपनी हद याद रखो। दूसरों की मौजूदगी में तुम्हारी तज़हीक हो तो अपने दिफा में चीखने की बजाय पुरएतमाद रहो। जो शख्स तुम्हारी इज्जत को मामूली समझता है, उसे अपनी जिंदगी में अहम मकाम देना जरूरी नहीं।
अगर कोई तुम्हारी बात को जानबूझकर गलत पेश करे तो हकीकत वाज़ेह करो और गैर जरूरी बहस से निकल जाओ। किसी के मजाक का निशाना बनने के बाद खुद को कसूरवार समझना जरूरी नहीं। हर मजाक मासूम नहीं होता। जो शख्स दूसरों के सामने तुम्हें कमतर दिखाता है उसे अपनी शख्सियत बदलकर खुश करने की कोशिश मत करो। अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी महफिल छोड़ देना महफिल में रहकर खुद को तोड़ने से बेहतर होता है। जो शख्स तुम्हें शर्मिंदा करके तुम्हारा रद्द अमल देखना चाहता है उसे वो रद्द अमल मत दो जिसका वो इंतजार कर रहा है। दूसरों की राय का एहतराम करो मगर अपनी इज्जत के फैसले का इख्तियार हमेशा अपने पास रखो। जो शख्स तुम्हारी इज्जत बार बार मजरूह करे उसके अल्फाज नहीं उसके मुसलसल रवैये को देखो। आखिरकार अपनी इज्जत का सबसे मजबूत जवाब ये है कि तुम किसी की बदतमीजी को अपनी शख्सियत का हिस्सा ना बनने दो। जो लोग तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करते हैं उन्हें जवाब देने के ये 5 असूल जान लो। नंबर 1, अपनी हद वाज़ेह करो। जो शख्स महफिल में तुम्हें नीचा दिखाए उसे पुरसकून अंदाज में बताओ कि तुम उस रवैये को कबूल नहीं करते। नंबर 2, गुस्से में अपना वकार मत खो देना। सामने वाला तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता है तो उसे वो मौका मत दो। पुरएतमाद जवाब ज्यादा असर रखता है। नंबर 3, हर बात का दिफा मत करो। कुछ लोग हकीकत जानने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें वजाहतें देने पर मजबूर करने के लिए सवाल करते हैं। नंबर 4, अकेले में हकीकत समझाओ। अगर कोई बार बार महफिल में तुम्हारी तज़हीक करे तो मुनासिब वक्त पर उसे वाज़े अल्फाज में उसके रवैये का एहसास दिलाओ। नंबर 5, जरूरत पड़े तो फासला इख्तियार करो। जो शख्स बार बार तुम्हारी इज्जत मजरूह करे उससे दूरी इख्तियार करना कमजोरी नहीं बल्कि अपने वकार की हिफाजत है। जो तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करे उसे अपनी खामोशी से अपनी कदर कम करने का मौका मत दो। हर शख्स को जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को जवाब देने की बजाय अपनी जिंदगी से फासले पर रखना बेहतर होता है। किसी की बदतमीजी तुम्हारी शख्सियत की अक्कासी नहीं करती, अक्सर वो उसके अपने किरदार की हकीकत बताती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं। पुरएतमाद अल्फाज अक्सर सबसे ज्यादा असर करते हैं। याद रखो, तुम्हारी असल ताकत ये है कि कोई तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करे फिर भी तुम अपना वकार न छोड़ो। अगर किसी ने कभी तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया है तो कमेंट में मैं अपना वकार नहीं छोड़ूंगा लिखो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करो जिसे अपनी इज्जत के लिए ये बातें सुनने की जरूरत है। और ऐसी ही ताकतवर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।